Welcome to my YouTube channel. I hope you are enjoying my video. Enjoying not if I hope you are learning from my video. Uh, Yesterday's video I have posted about the reported speech one and direct and indirect. I hope you have seen. If you haven't seen, please go and watch and like, share, and subscribe. Thank you. Today we will learn the rest of the things which was remaining because the video already has like an 8 minute or 10 minutes. So I have made it into two parts which you can understand very well. Got it my point? And the first is it is not necessary to change the verb in reported speech. Yesterday's video, which I have uploaded a previous video, in that video I have told you when we change direct, if you are telling something, I will change that verb in past. Okay. I also has told you like direct, अगर मैंने बोला कोई शब्द किसी ने मुझे बोला, like someone has told me Ravi said I am ill. Okay, I am feeling ill. Yesterday I have told you, Ravi said I am feeling ill. This is a direct. Okay, if I'm telling you to another person, so in the direct, indirect video, indirect. Okay, so this is direct to indirect when you are changing. So inverted commas, instead of inverted commas, it comes that. Instead of inverted commas, it comes that. As well as if the present is there, we use past. Okay, I have told you if you are using present tense, present simple, the present simple convert in past simple. Okay, if you are doing like present continuous will change in past continuous. Okay, or present perfect will change in past perfect. Okay, past perfect. One more thing also happen when the verbs or sentence is given in past perfect. Okay, when the sentence is given in past simple, okay, that past simple will change in past perfect. Okay, past simple will change in past perfect. पहले मैं ये बता देती हूँ कल का. I am just giving you a little review, then you get to understand more about that. Okay, so yesterday I have, okay, so past simple we will, I am telling you, if that sentence is given in direct way past simple, so that indirect अगर हम चेंज करेंगे तो उसको past perfect में करेंगे. अब इसका कैसे बनाएंगे? Like direct, he said the horse died in the night. Okay, he said that, oh sorry, that नहीं आएगा. He said the horse died in the night. ओके, तो ये मैंने बताया था कल वाले वीडियो में कि जब प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस आएगा. अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो गो एंड वॉच वीडियो, देन यू गेट टू अंडरस्टैंड वेरी वेल. ओके, सो हियर इट इज वन मोर थिंग, ये दैट इज अनदर रूल विच यू अंडरस्टैंड. पास्ट सिंपल का अगर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल he said the horse died in the night. He said the horse died in the night. तो he, अभी इसको डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे रिपोर्टेड स्पीच में. ही सैड का ही सैड ही आएगा, इन्वर्टेड कोमा हटके क्या आएगा? दैट. व्हाट विल कम? दैट. ओके, द हॉर्स डाइड इन द नाइट. ओके, द हॉर्स हैड. पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, एंड व्हाट कम्स इन पास्ट परफेक्ट? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ओके, ओके, तो यहां पे क्या आएगा? हैड. और डाइड तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, हैड डाइड इन द नाइट. सो व्हाट इज द आंसर? ही सेड दैट, इन्वर्टेड कोमा हटाया, कंजक्शन दैट लगाया, द हॉर्स हैड डाइड. गॉट इट माय पॉइंट? यानी कि अगर पास्ट सिंपल दिया है डायरेक्ट में
तो उसको किस में कन्वर्ट करना है? पास्ट परफेक्ट में. किस में कन्वर्ट करना है? पास्ट perfect mein. This is the another rule. I hope you understand. Now let's come to the main topic, which is I am going to start teach you today. The first topic is it is not necessary to change the verb. It is not necessary to change the verb in reported speech. Why? मैंने बताया था कि it is अगर present simple दे रखा है तो verb किस में change होगी? पास्ट सिंपल में. किस में चेंज होगी? पास्ट सिंपल में. अगर प्रेजेंट सिंपल दे रखा है तो वर्ब किस में चेंज होगी? पास्ट सिंपल में. क्यों चेंज होगी? क्योंकि हम किसी को जब कोई कन्वर्ट कर रहे हैं मैसेज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो उसकी वर्ब चेंज हो जा रही है. उसने बोला आई एम फीलिंग इल, तो मैंने क्या बोला? रवि सैड ही वॉज फीलिंग इल. ओके, रवि सैड दैट ही वॉज फीलिंग इल. मैंने डायरेक्ट कन्वर्ट किया तो एज इट इज सेम सेम, बट मैंने उसको मतलब उसको दूसरे इंसान को किसी को कन्वर्ट किया है इनडायरेक्ट में रिपोर्ट में, तो उसमें क्या आएगा? लाइक पास्ट फॉर्म्स आएंगी. प्रेजेंट की फॉर्म्स में क्या आएगा? पास्ट फॉर्म्स आएगी. ओके, सो एज सेम एज लाइक इफ यू वांट टू सी, ओके, इट इज नॉट नेसेसरी टू चेंज, it is not necessary to change the verb in reported speech. Why? If the situation is same. If the situation is same, तो दैट मोमेंट हम क्या करते हैं? चेंज नहीं करते हैं. एग्जैक्टली वी शुड राइट इन द सेम मैनर. ओके, इट इज नॉट नेसेसरी चेंज द वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच इफ द सिचुएशन इज सेम. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूं तो फॉर एग्जाम्पल क्या है? हाँ, रवि सैड his new job is boring. अब क्या है ये? रवि ने क्या बोला? रवि ने बोला कि उसकी नई जॉब बोरिंग है. तो वो नई जॉब अभी भी बोरिंग है, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुई है. ओके, फिनिश नहीं हुआ है. समझ में आया? रवि said his new job is boring, तो still his new job is boring, कुछ उसमें खास नहीं आया. तो ये क्या है? सिचुएशन अभी तक सेम है. सिचुएशन स्टिल इट इज सेम. सिचुएशन यहाँ पे चेंज नहीं है. उसकी जॉब बोरिंग है, जॉब बोरिंग ही है. चलो दूसरा देखते हैं, फिर बनाएंगे. ये तो हो गया डायरेक्ट में. एंड देन व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दैट? रवि सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट. ये तो आएगा ही आएगा. ओके, हिज न्यू जॉब इज बोरिंग. अगर मैं इसको चेंज कर दूं और मान लो रवि हैज स्विच्ड अनदर जॉब, रवि ने इस जॉब को छोड़ के या घर पे बैठ गया, या कोई जॉब नहीं कर रहा है, या ही इज नॉट डूइंग एनी जॉब और ही इज स्टेइंग एट होम, तो क्या आएगा? सिचुएशन चेंज हो जाएगी. रवि सेड दैट हिज न्यू जॉब वाज बोरिंग. तो इज की जगह यहाँ पे क्या आएगा? वॉज आ जाएगा. वर्ब यहाँ पे चेंज होगी, बट यहाँ पे उसकी जॉब अभी भी बोरिंग ही है, उसने चेंज नहीं की है. तो क्या आएगा इसका आंसर? बताओ, व्हाट विल बी द आंसर? His job still is boring. हाँ, रवि said that his, यहाँ पे प्रोनाउन चेंज हो जाएगा. प्रोनाउन चेंज हो गया. अगर हमने एज इट इज डाला तो फिर हो जाएगा, क्योंकि कैसा होता है ना कि आई एम द पर्सन हु इज कन्वर्टिंग द मैसेज टू समवंस. ओके, मैं आई एम द पर्सन हु इज कन्वर्टिंग टू मैसेज टू समवन, तो उसमें थोड़ा तो प्रोनाउन तो चेंज करना ही पड़ेगा. तो यहाँ पे हिज की जगह अगर मैंने एज इट इज सेम लिख दिया तो डायरेक्ट ही रहेगा, वो नॉट बिकम्स इन डायरेक्ट. उसका फिर कोई सेंटेंस का देयर इज नो नीड ऑफ इट. ओके, तो यहाँ पे रवि सैड, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट हिज, यहाँ पे जो ही है उसको हिज में कन्वर्ट करेंगे, मतलब उसका प्रोनाउन चेंज करेंगे. हिज न्यू जॉब, एक सेकेंड कहीं कुछ, माई न्यू जॉब इज बोरिंग. ओके, यहाँ पे सॉरी माई मिस्टेक, मैंने गलत लिख लिया. My new job is boring. Okay, it was sorry for that. Okay, Ravi said my new job is boring. Okay, वही मैं सोचूं यहाँ कुछ गड़बड़ नजर आ रही है. रवि said ने, रवि ने क्या बोला? My new job is boring. तो इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने क्या लगाया? That लगाया. यहाँ पे my का प्रोनाउन चेंज करके हमने क्या किया है? His, क्योंकि यहाँ पे अगर my लगा दिया तो वो खुद ही बोल देगा, खुद ही डायरेक्टली वो मैसेज समवन को दे रहा है, तो थर्ड पर्सन तो मतलब वो नीडेड नहीं है ना.
तो दैट हिज न्यू जॉब। अब यहाँ पे जो वॉज लगाते हैं हम प्रेजेंट सिंपल को, जब हम पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, तो ये जो हम इज है ना, इसको वॉज नहीं करेंगे, एज इट इज सेम लगा देंगे। ठीक है, तो ये होता है व्हेन द सिचुएशन इज द सेम। ओके, यानी कि रवि सेड दैट हिज न्यू जॉब इज बोरिंग, यानी कि स्टिल हिज न्यू जॉब इज बोरिंग। टेक सम अनदर एग्जांपल अबाउट दैट। रिया सेड, yes, take another example. Riya said, I want to go to Japan. Okay, what she tell? She tell, I want to go to Japan in, okay, next year. यहाँ पे next year लगा देते हैं. Let's see. Riya wants to go to Japan next year. तो अभी तक क्या है ना, रिया गई नहीं है। सिचुएशन कैसी है? सेम है, सिचुएशन में कोई चेंज नहीं है। शी वॉन्ट्स टू गो। ओके, यहाँ पे है इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगा दिया। आई की जगह क्या आएगा? शी। प्रोनाउन हैज चेंज। वांट की जगह क्या आएगा? वांट्स आ जाएगा, बिकॉज शी है, सिंगुलर है तो एस लगेगा। ओके, सिचुएशन सेम है तो वी आर नॉट चेंजिंग शी वांटेड टू गो बिकॉज सिचुएशन इज सेम। ओके, अगर मान लो वो चली गई होती और फिनिश हो गई होती तो यहाँ पे वांटेड आ जाता इंस्टेंट ऑफ वांट्स की जगह। तो शी वांट्स टू गो जापान नेक्स्ट ईयर। गॉट इट माई पॉइंट? समझ में आया? शी वॉन्ट्स टू गो जापान नेक्स्ट ईयर, यहां पे टू लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस में क्या है सिमिलर? सिचुएशन सेम है, सिचुएशन इज नॉट चेंज्ड यट, नॉट फिनिश यट। तो सिचुएशन चेंज नहीं हुई है तो प्रोनाउन और कंजक्शन चेंज हो गया, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, बाकी एज अ सेम को सेम आएगा। ठीक है, नो पास्ट फॉर्म विल कम। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, one more thing you should also understand, you need to use a past form when there is a difference between what was said and what is really true. अभी अभी मैंने बताया कि when the things has not finished or not changed, that moment there is no need to be changed the verb. Pronoun conjunction can be changed, okay? But here, when someone is tell, for example, my someone a friend who was in hospital and मेरे को उसके बारे में नहीं पता. Okay, मेरा my someone's friend, she was in hospital and I didn't aware about that. And here is the one of the conversation then you can understand. Okay, तो क्या हुआ कि रिया जो कि मेरी दोस्त है उसने मुझे बताया कि रवि हॉस्पिटल में है, रवि इज इन हॉस्पिटल, ही इज नॉट फीलिंग वेल, और उसको कुछ मलेरिया वलेरिया हो गया। तो रिया ने मुझे क्या बताया? रवि, मैं रिया से जब मिली, व्हेन आई मेट टू रिया, रिया टोल्ड मी few days ago, okay, Ravi is in hospital. Okay, what Riya told me, Ravi is in hospital. Here, after few days later, मतलब 4-5 दिन के बाद, फिर मैंने जब मैं रवि से मिली, when I meet to Ravi, that moment situation was different. What was the different? 4 days ago, when रवि के बारे में जब वो बता रही थी तो वो हॉस्पिटल में था, but after 5 days or 4 days later, when I meet to Ravi, तो मैंने क्या, what was my reaction? My reaction was, I didn't expect. Riya said you were in hospital. Okay, तो यहाँ पे क्या है? You need to use a past form when there is a difference between what was said and what is really true. यानी कि जब मैं रवि से मिली तो रवि वहां उस मोमेंट पे, एट दैट मोमेंट वो हॉस्पिटल में नहीं था। कहाँ था? He was front of me. Okay, he was front of me, front of that moment. I didn't expect. Okay, when I later I meet Ravi, so what I tell you, I didn't expect. What I didn't expect from him? To see you. Okay, तो मैं क्या बोलूंगी? Hi, I didn't expect. Didn't यानी कि मैंने सोचा नहीं था। I didn't, ये पास्ट फॉर्म आएगी। I didn't expect to see
you. ओके, आई डिडंट एक्सपेक्ट, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आ गया हॉस्पिटल से और नाउ ही इज एब्सोल्युटली फाइन. तो यहाँ पे क्या हुआ, द थिंग्स विच वाज शी टोल्ड मी एंड राइट नाउ इज अ डिफरेंस. यानी कि जब वो उसने मुझे बोला उस टाइम में और अब में कितना डिफरेंस है, क्योंकि उस टाइम पे वो हॉस्पिटल में था. ओके, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू सी यू. मैंने तो सोचा तुम अभी भी हॉस्पिटल में ही हो, तुम्हें मलेरिया होगा, तुम 6-7 महीने मतलब 15 दिन वहीं रहने वाले हो या 10 दिन. मैंने आई वॉज थिंकिंग लाइक दैट. ओके, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू सी यू. ओके, देन आगे क्या है इसके, रिया सेड दैट यू वर इन हॉस्पिटल. व्हाट रिया सेड, रिया सेड, रिया सेड दैट you were in hospital. Okay, so I didn't expect to see you. Riya said that you were in hospital. तो मैंने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था जो मुझे उस टाइम पे. तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि यू नीड टू यूज अ पास्ट फॉर्म when there is a difference between what was said to by someone's and what is really true right now. Okay, there is one more thing. When we tell and ask somebody to something, okay, jab reported speech, tell ask somebody to do something. When you are asking to someone or if you are telling to someone in a way of request, in a way of order, so that moment what you will use, infinitive verb. Okay, we also use the infinitive like to do wala. Okay, not doing an ing wali form, it will come like infinitive in reported speech, especially with tell and ask. Okay, in that like order and request, if you are order someone's, okay, you have to do it, you are giving to order someone, or instead of your like requesting to somebody, that moment infinitive verbs के साथ क्या आता है, जब आप tell और ask कर रहे हो तो उसमें infinitive verbs आएगा. ओके, ना कि क्या आएगा ing या अदर थिंग्स. बी रिमेंबर infinitive. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है डोंट बी लेट आई सेड टू रवि. मैंने रवि से बोला डोंट बी लेट. ओके, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड ऑर्डर. मैं ऑर्डर दे रही हूँ रवि को डोंट बी लेट. तो इसमें इनडायरेक्ट में क्या आएगा, देखो आई टोल्ड. यहाँ का टेल की क्या आएगा, आई टोल्ड. टेल इज टोल्ड रवि नॉट टू बी लेट, यानी कि फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव में क्या आता है, टू डू. ओके, तो यहाँ पे हमने ना आईएनजी ना पास्ट कुछ यूज नहीं किया है. तो ये याद रखना कि जब आप किसी को कुछ बोल रहे हो या कुछ पूछ रहे हो या कोई ऑर्डर है या कोई रिक्वेस्ट है, तो दैट मोमेंट जब आप टेल यूज करते हो तो along with the tell do not use other like a ing wali form. So that moment you have to use infinitive verb. Okay, I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you so much. अगर कोई कमी है तो मुझे जरूर बताना. Whatever the shortcomings, I try to be improve. You are getting or you are understanding or not, and not tell to me. Okay, thank you and